आज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान ने 66 गौरवशाली वर्ष पूरे किए और आज यहाँ पर समारोह गरिमामयी रही और उत्साह से सजी। ये जो संस्थान है इसकी खासियत ये है कि ये अग्रणी रही है सिर्फ मत्स्य विकास में नहीं, मानव संसाधन विकास में भी, और कई सारे मात्स्यिकों के लिए और उद्यमियों के लिए बहुत ही लाभकारी रही। I humbly take this opportunity of requesting our Honorable Chief Guest to kindly release significant publications. आज का 66th फाउंडेशन डे मैं आपका बहुत बहुत शुभेच्छा करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। सर ये ऐसा इस साल चालू किया है थीम, लेकिन हम लोग 3 साल पहले ऑलरेडी चालू कर दिया था। हर साल के लिए हम लोग थीम डिक्लेयर करते थे। मैं बता रहा हूँ हम 2023 में फर्स्ट थीम डिक्लेयर किया है, ये नॉलेज कमर्शियलाइजेशन 2023 नॉलेज कमर्शियलाइजेशन। सर हम लोग जो डिक्लेयर किया थीम बेस्ड ऑन हमारा क्या वीक एरिया क्या है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग वही ऑब्जेक्टिव लेके जो हमने थीम ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया। तो फर्स्ट ईयर था नॉलेज कमर्शियलाइजेशन। इसलिए क्या था, बीइंग ए डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारा कमर्शियलाइजेशन बहुत कम था। 2019 तक हमारा ओनली 2 ग्रांट था ग्रांटेड। तो अभी 2019 से लेके अभी बीच में 3 साल चला गया आपका कोविड, तो 22 के बाद 4 साल में हमारा 8 पेटेंट ग्रांटेड हो गया, 8 पेटेंट ग्रांटेड, देन 5 हमारा कॉपीराइट, 8 डिजाइन एंड 26 कमर्शियलाइजेशन, 26 प्रोडक्ट कमर्शियलाइज हो गया है। सो वी गॉट समथिंग 46 लाख रुपीज। इस समारोह में उत्साह और गरिमा से विद्यार्थियों ने भाग लिया। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद हैं और हम उनसे भी बातें करने वाले हैं। Congratulations once again, you have been awarded this Best PhD Thesis Award. So please tell us something about this award. What is the name of the award and how do you feel and what next? Thank you for the opportunity. I am Dr. Sini Watson. I have received Best PhD Thesis Award. The name of the award is Professor Ravindranath Kothapalli Best PhD Thesis Award. Usually there is this award conferred every year. So over the last 1 year, they are getting the best award. I am from Life Science. My work is on dry fish processors in Tamil Nadu. So I am from social science. So though there are a lot of life science people out there, I have received this award. It's a really privilege to get this award. Thank you for the opportunity. Thank you so much. You are welcome, and also please tell us what are your future plans? So currently I am working at IIT Madras. I am a researcher. I am doing the research on same field. Thank you. अब हम बात करेंगे राविश्री से। इन्हें नवाजा गया है MFSC गर्ल स्टूडेंट रिसर्च अवार्ड से। Congratulations राविश्री। Thank you. I would also like to ask you, how do you plan to go about ahead after this?
So currently I am doing my PhD here in CIFE in the Department of Fishery Resource Management, and the title I have worked for this research was on invasive mussel called charu mussel. So it is a highly invasive in nature because it affects the native species. So I worked on that species on my research title. And I would like to thank my advisor, all my co-authors, and this institute for giving me this platform to work on this research. Thank you. Also, do tell us, Ravishri, was it very difficult to prepare for the exam and acquire this award? Actually, ma'am, yeah, it is a bit competitive. This exam is a bit competitive, but if you study and if you prepare, you can achieve this and you can score this. So nothing is impossible. So you can definitely come to this institute and do this research and your coursework and studies. Thank you. अब बात करेंगे डॉक्टर हीरालाल चौधरी यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2026 के विजेता से, डॉक्टर राम टेके से। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बधाई, आपने ये अवार्ड जीता है, कुछ बताइए इसके बारे में। थैंक यू मैम। सो ये अवार्ड बेसिकली ऑल इंडिया लेवल पे जो फिशरीज में हम लोग वर्क करते हैं उसके ऊपर हमारे जो रिसर्च है, टीचिंग है और एक्सटेंशन एक्टिविटी करते हैं उसके ऊपर से दिया जाता है। और मोस्टली हार्वेस्टिंग, फिश केयर के हार्वेस्टिंग, रिमोट सेंसिंग, GIS, इनके ऊपर मेरा रिसर्च है और इसी में मैं स्टूडेंट लोगों को गाइड करता हूँ, इसी में रिसर्च करते हैं। इसके बाद मैं और जो स्पेशल मैपिंग है, जो मोस्टली सीवेड रिसोर्सेज है, कोरल रीफ रिसोर्सेज है नॉर्थ वेस्ट कोस्ट में, मैं उनके ऊपर अभी काम करने के ऊपर मेरा आगे का प्लान किया। अब हम बात करेंगे डॉक्टर पारोमिता बैनर्जी सावंत से, जो है बेस्ट वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड विनर। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेस। हमें बताइए अपनी तैयारियों के बारे में। धन्यवाद। हम इस संस्थान में जल कृषि विभाग में कार्यरत हैं, दैट इज़ द एक्वाकल्चर डिवीजन, और मैं रंगीन मछलियों के ऊपर शोध कार्य करती हूँ एवं रंगीन मछलियों के प्रजनन, संवर्धन, उनके रंग को निहारना, इन सब के ऊपर मेरी शोध कार्य रहती है। इस साल हमारे संस्थान में जितने भी यंग अचीवर्स हैं, मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। हमारे जल कृषि के क्षेत्र में बहुत नए नए जो उपलब्धियां हैं उनमें से एक है रंगीन मछलियों का प्रजनन, संवर्धन एवं रंगीन मछलियों के ज़रिए हम महिलाओं को किस तरह से उनको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ज़रिए हम उनको एकत्रित करके उनकी लाइवलीहुड एनहांसमेंट प्रोग्राम में हम पार्टिसिपेट करते हैं। So that is one of the great achievements of this institute and fisheries sector in general in the country, and I am happy that I could contribute this towards my institute, my country, my nation, and towards the fisheries fraternity in general. थैंक यू सो मच, आपने इतनी जानकारी दी। अब हमें बताइए आगे के लिए आप क्या प्लान कर रही हैं? आगे के लिए हमारे पास एक नेशन वाइड नेटवर्क प्रोजेक्ट है, विच इज़ ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन ऑर्नामेंटल फिश ब्रीडिंग एंड कल्चर। इसके ज़रिए फिशरीज़ के क्षेत्र में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं ऑल ओवर द कंट्री, आर्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें से एक केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान भी है, और उसमें हम लोग नए नए रंगीन मछलियों पे संवर्धन एवं प्रजनन का कार्य शुरू कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद मैं कहूँ कि बहुत जल्द ही आपको बहुत सारे नए रंगीन मछली के प्रबंधन के बारे में पता चलेगी, और उसके ज़रिए हम इस देश को हम और सशक्त बना सकते हैं, यही आशा है मेरी। अब हम बात करेंगे डॉक्टर SN ओझा से, जो है फॉर्मर HOD सोशल साइंस डिपार्टमेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, और शुभकामनाएं। इस संस्थान ने 66 साल पूरे की, और इस स्थापना दिवस पर आपके क्या विचार हैं? स्थापना दिवस हमारे इंस्टीट्यूट में 1961 में इंस्टीट्यूट बना था। 1961 में जब ये बना था, उस समय जो डायरेक्टर थे कुलकर्णी साहब, या उससे पहले अलीकुनी साहब, इन लोगों ने एक शोध कार्य किया था जिसके वजह से ये संस्थान बहुत फेमस हो गया।
इसमें जो हैचरी जो बना उसका जो शुरुआत इस इंस्टीट्यूट ने किया था। जो हैचरी आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में बन रहा है, उसकी शुरुआत इस इंस्टीट्यूट ने किया था और कुलकर्णी साहब का उसमें बहुत बड़ा रोल था। वहाँ से इंस्टीट्यूट का नाम पूरे विश्व में होना शुरू हो गया। उसके बाद भी इस इंस्टीट्यूट ने बहुत बड़े बड़े काम किए, जैसे आपका एमएससी प्रोग्राम स्टार्ट करना। एमएससी प्रोग्राम हर जगह नहीं था, एमएससी प्रोग्राम को एनर्जाइज करना, उसको बहुत कम फैकल्टी के साथ किया। कम से कम 2, 3, 4 फैकल्टी मिलके एक एमएससी एक पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट किया था। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग काम था। हम लोग जब आईसीआर गए थे, मैं खुद गया था, आईसीआर गया था, उन लोगों ने सबको बताया कि देखो ये 2 साइंटिस्ट एक एमएससी और पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट करने की हिम्मत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इसके साथ हम लोग का इंस्टीट्यूट एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी काम किए। एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ जो इंस्टीट्यूट के माध्यम से होता है वो 2 तरह से होता है। एक तो आपके ऑफिसर्स का ट्रेनिंग और दूसरा फार्मर्स के साथ सीखना कि उस फार्मर्स के में किस तरह से काम अच्छा होगा, जो कि हम बाद में ऑफिसर्स को बता सकते हैं। तो ये दोनों काम में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया था। एक टाइफेक प्रोजेक्ट था डॉक्टर अब्दुल कलाम का, वो प्रोजेक्ट हम लोग वहाँ से खींच के लाए। वो टाइफेक में अब्दुल कलाम साहब ने साइन किया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और फिर वो वैसा सैंक्शन हुआ। सैंक्शन होने के बाद उस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने कलम विलेज में महिलाओं के साथ किया प्रोसेसिंग पे। उसके बाद हम लोग बाय विलेज किए। बाय विलेज में भी जो था वो भी ट्राइबल एरिया में बहुत चैलेंजिंग काम था, जिसमें हम लोग को डीबीटी ने फंड किया था। इस तरह से हम लोग जो गांव के लोगों के साथ सीख के फिर हम लोग ऑफिसर्स को सिखाना, ये 2 मेन काम हमारे जो एक्सटेंशन के मुख्य काम होते हैं। अभी एक नया काम जो अभी आज सुबह इन्होंने बताया, एंटरप्रेन्योरशिप में जो चैलेंज है वो स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के तारीख में। ये काम भी अभी स्टार्ट किया है एंटरप्रेन्योरशिप पे। तो आज के तारीख में ये 3 काम एक्सटेंशन के बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शुरू से चला आ रहा है, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप नया ऐड हुआ है, शुरू से चला आ रहा है। और इसमें हमारे इंस्टीट्यूट में हर जगह सेंटर्स 3-4 जगह खोले हैं, उसके माध्यम से भी ये काम चल रहा है। हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप लेड एक्सटेंशन भी लाना चाहते हैं। इस तरह का एक्टिविटीज़ जो होते हैं, ये फ्यूचर प्लान जो होते हैं, वो आज का ही दिन जो है, जिस आज सुबह प्रेजेंट किया डायरेक्टर साहब ने, आज के दिन ही ये डिसाइड होना है कि अगले साल आपको क्या करना है। ये जो श्रृंखला है ये इस बार से स्टार्ट किया गया, जो हर साल एनुअल डे में हर इंस्टीट्यूट को एक तरह से प्रण लेना है कि पिछले साल आपका अचीवमेंट क्या था, अगले साल आप क्या करना चाहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ इस साल ऐड हुआ है। Congratulations to you, Dr. Arun Sudhakar. Please tell us more about your award and your preparations. Thank you. I'm Dr. Arun Sudhakar. I am senior scientist from ICR, National Bureau of Fish Genetic Resources. I am right now posted in Kochi Center of the institute. I have been awarded with Dr. C.V. Kulkarni, Best Young Scientist Award. And right now, we are working on fish diseases. We are addressing the problems of farmers, particularly ornamental fishing farmers of Kerala, and we are addressing their disease problems. We are doing a lot of research on what kind of diseases they are getting and what kind of solutions we can give to the farmers. So that's what we are working on. That's lovely, and congratulations to you. Also, I would like to know what are your future plans? Right. So our future plans are to develop vaccines and diagnostics, particularly for farmers, to address these disease problems. So those are my future plans. आज के इस गौरवशाली दिन यानी कि ICAR CIFE के 66वें स्थापना दिवस पर हम बात करेंगे डॉक्टर NP साहू से, जो है निदेशक ICAR CIFE। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, और शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। ये दिन बहुत ही खास है, तो कोई संदेश जो आप सभी को देना चाहें। मैं ये 66वां स्थापना दिवस तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन है, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। ये है कि इंस्टीट्यूट है जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ओनली इन द कंट्री जो कि फिशरी रिसर्च और एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड है।
ये इंस्टीट्यूट शुरुआत हुआ 1961 में एज ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग के लिए हुआ था। धीरे धीरे ये इंस्टीट्यूट का प्रोग्रेस हुआ। 1979 में ये आईसीआर के अंडर में आ गया है। वो 1789 में ये डीम्ड यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया। 1989 के बाद हम लोग को जितना सब हमारा कंट्री का स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, वहाँ मास्टर्स एंड पीएचडी दोनों में हायर एजुकेशन में हम लोग को उनको डिग्री देता है। यहाँ हमारा यूजी प्रोग्राम है नहीं, तो 2010 से हम लोग ऐसे प्रोग्राम डिजाइन किया है। ये 11 डिसिप्लिन स्पेशलाइज डिसिप्लिन में हम लोग मास्टर्स एंड पीएचडी दोनों में आप ऑफर करते हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्पीट करके यहाँ आते हैं। आने के बाद ये लोग इधर मास्टर्स और पीएचडी डिग्री लेके कंट्री में डिफरेंट हायर पोजीशन में ऑक्युपाई करते हैं, जो कि फिशरी रिसर्च एंड एक्वाकल्चर सेक्टर को और लोगों का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आज का डेट में आप देखेंगे हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है एक्वाकल्चर फिशरी सेक्टर को काफी बढ़ावा दे रहा है, इससे काफी ग्रोथ हो रहा है। आज देखेंगे आज कंट्री में 73,000 करोड़ का एक्सपोर्ट वैल्यू है हमारा। उसमें प्राइम मिनिस्टर ने उनको जो टारगेट दिया है 1 लाख करोड़ हमारा अर्निंग होना चाहिए। और ये सेक्टर है वो जॉब अपॉर्चुनिटी खूब ज्यादा है, इसलिए ये सेक्टर को खूब बढ़ावा दे रहा है। हमारा जो 66 से ऑन संडे है हम लोग आज डिक्लेयर किया है। आज का जो थीम डिक्लेयर किया गया है इनोवेट, इंटीग्रेट एंड इम्पैक्ट। हर साल हम लोग एक थीम डिक्लेयर करते हैं। इस साल का जो हमने थीम डिक्लेयर किया है, हम लोग जितना सारा हमारा टेक्नोलॉजी है उसको सब इंटीग्रेट करके तो उसका क्या इम्पैक्ट आना चाहिए, हमारा सोसाइटी में क्या बेनिफिट मिलना चाहिए, फार्मर्स को क्या बेनिफिट मिलना चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिफरेंट रूपरेखा हमने प्रदर्शन किया है। साल भर का हमारा जितना एक्टिविटी है इसको हमने चेकआउट किया है, वो हिसाब से इस साल का हम काम करेंगे। तो फाइनली वो जितना हमारा एक्टिविटी होगा वो टेक्नोलॉजी फार्मर्स तक पहुंचना चाहिए, वो सोसाइटी का बेनिफिट के लिए यूज होना चाहिए। ऐसे टाइप का हम डिफरेंट टाइप प्रोग्राम बनाया है। आज जो हमारा जितना अलुमनी यहाँ आए हुए हैं, अलुमनी का मीट भी कर रहे हैं। अलुमनी भी हमारा डिफरेंट पोजीशन में सब अच्छा पोजीशन में ये वो लोग डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनका साथ मीटिंग करके उनका सेक्टर इंडस्ट्री का क्या रिक्वायरमेंट है वो भी हम उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे। फिर हमारा करिकुलम, हमारा वो रिसर्च प्रोग्राम उसको इंटीग्रेट करेंगे। करने के बाद ये सब हम रिसर्च प्रोग्राम कैसे मॉड्यूलेट करेंगे जो कि हमारे सोसाइटी बेनिफिट होगा, उसके लिए हम पूरा आज चर्चा करेंगे। तो आज मैंने सभी को अगेन पूरा पुनः शुभेच्छा ये देता हूँ। 66 फाउंडेशन डे ऑफ CIP बहुत मेमोरेबल डे है। धन्यवाद। आता आपल्या सोबत आहेत सिनियर सायंटिस्ट डॉक्टर माधुरी श्रीकांत पाठक आणि यांना बेस्ट यंग सायंटिस्ट अवॉर्ड मिळालेला आहे। खूप खूप कॉंग्रॅच्युलेशन्स, अभिनंदन। आणि आम्हाला काही सांगा तुमच्या अवॉर्डबद्दल। हा जो अवॉर्ड मला मिळाला आहे बेस्ट यंग सायंटिस्ट, हा माझ्यासाठी सर्वोत्कृष्ट असा हा सन्मान आहे। आणि हा सन्मान माझ्या एकटीचाच नव्हे किंवा माझ्या कामाचाच नव्हे, तर मला माझ्यासोबत असणारे माझे मार्गदर्शक, माझे सगळे गुरुजन वर्ग आणि माझ्यासोबत असलेले माझे सहकारी, माझे मित्र आणि माझी फॅमिली, माझी स्पेशली म्हणजे हे सगळं या सगळ्याचं मी श्रेय माझ्या आईला देऊ इच्छिते। आणि तिच्या पाठिंब्यामुळे किंवा बाकीच्या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनामुळे मी आज हा सन्मान घेऊ शकते। आणि मला असं वाटतं की कुठेतरी आपण केलेल्या कामाची पोचपावती जेव्हा मिळते तेव्हा आपण जास्त चांगल्या प्रकारे, जास्त उत्साहाने काम करतो। तर असंच काम करायची माझी इच्छा आहे। आणि महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातल्या शेतकऱ्यांसाठी, मत्स्य शेतकऱ्यांसाठी जेवढं माझ्याकडून योगदान करता येईल या क्षेत्रामध्ये तेवढं मी नक्कीच करण्याचा प्रयत्न करेन। आणि हा सन्मान मला दिल्याबद्दल मी आयोजक आणि निवड समितीचे खूप खूप आभारी आहे। सर्वांना खूप खूप धन्यवाद। आणि असंच प्रेम करत रहा, असेच आशीर्वाद देत रहा, जेणेकरून मला पण काम करायची ऊर्जा येत राहील। अब हमारे साथ हैं डॉक्टर हीरालाल चौधरी, बेस्ट फिश फार्मर अवार्ड के विजेता मिस्टर के कदिरेशन। Congratulations to you. Please tell us more about this award. Actually, this is a Dr. Hinal Chaudhary award. Was from he has invented the fish breeding. So in the honor of him, we have received the fish farming award. Actually, I have doing my shrimp farming since 2022. Before that, I was doing my masters in same fisheries field only. My motto is only we have to do shrimp farming due to scientific approach. We have to do not in a layman method. We have to do on a scientific approach. In that motto, we have started our own shrimp farming. Me and my friend Mr. Dayanath, we both started our shrimp farming, and we have successfully
completed our 5th year. This is our 5th year. In our 5th year, we have got our this award. This award is honor to us also, and it's very happy to it's very happy. Thank you so much. अब हमारे साथ हैं रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर आरपी रमन। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और इस संस्थान को 66 साल पूरे हुए हैं, गौरवपूर्ण समय है ये, और आपको भी ढेरों बधाई। हमें अपने काम के बारे में सर कुछ बताइए। आज 66वां स्थापना दिवस है। इसमें जो है इस 66 में से 35 में हम लोग भी थे संस्थान के उन्नति और विकास के लिए, और मेरा एरिया था फाइटोथेरेपी ऑफ फिश डिजीजेस। मैंने कई सारी टेक्नोलॉजी और बहुत सारे रिसर्च इस विभाग में फाइटोथेरेपी में किए, जिसमें हमने अल्टरनेटिव थेरेपी के द्वारा मछलियों, शेलफिश और सेलफिश में उसका कंट्रोल और उसका निवारण के लिए हम लोगों ने बहुत काम किया है। और हमारी टीम इसमें पिछले 30 साल से जो है इस विधा में हम लोगों ने काम किया है, और फाइटोथेरेपी को एज ए फिश थेरेपी के रूप में इस्टेब्लिश किया है। आगे मेरी ये राय है और मेरा ये विचार है कि अल्टरनेटिव थेरेपी और प्लांट बेस्ड मेडिसिन्स और हर्बल ट्रीटमेंट ऑफ different diseases of aquatic animals are very important area to find out new components, new bioactive components and new phytocompounds to tackle the ever increasing problem of fish diseases. देश में मत्स्य शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी इस संस्थान ने गरिमा और उत्साह से ये खास दिन मनाया। इस समारोह में उपस्थित रहे विद्यार्थी, पूर्व छात्र, वैज्ञानिक और शिक्षक। यहाँ पर गणमान्य अतिथियों ने भी कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं श्री सौरभ कटियार IAS, जो है जिलाधीश जिलाधिकारी मुंबई और उपनगरीय मुंबई। और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं डॉक्टर NP साहू, जो है निदेशक ICAR CIFE।
वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा में ICAR-CIFE ने न ही केवल मत्स्य शिक्षा और अनुसंधान में नई दिशा दी, बल्कि लाखों मत्स्य पालकों और उद्यमियों के साथ जुड़ाव बनाए रखा। यहाँ आज 66वां स्थापना दिवस उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ और हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि ये संस्थान आने वाले वर्षों में यूं ही अपनी यात्रा में नई उपलब्धियां हासिल करता रहे।